अगर आपको कहा जाए कि एक्सप्लेन साइंटिफिक द FW टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल इन ब्रीफ, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? दिस इज द एक्सप्लेनेशन. FW Taylor scientific principles of management. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. These are the 4 principles. Taylor scientific principles: science, not rule of thumb; harmony, not discord; cooperation, not individualism; development of workers to their greatest efficiency and prosperity. In order to apply these 4 principles, the 5 techniques which have been given by FW Taylor are as follows, and these are the techniques: functional foremanship, standardization and simplification of work, work study, and under work study we have to study 4 techniques: fatigue study, method study, time study, and motion study. The 4th one is differential piece-based system. 5th one is mental revolution. So this is the overview of the Taylor's scientific principles of management. Let us understand कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्यों बोलेगा इसको. FW टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स में साइंटिफिक टर्म का यूज क्यों किया? क्योंकि इनके प्रिंसिपल्स में ये बात साफ साफ कही गई है कि सी यू हैव टू अप्लाई ऑब्जर्वेशंस. जैसे साइंस में ऑब्जर्वेशंस अप्लाई किए जाते हैं और साइंस के जैसे जो थ्योरीज हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर बनाए गए हैं. उसी तरीके से आप जब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात करते हैं तो यू हैव टू एक्चुअली डेवलप द प्रिंसिपल्स, टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जैसे कि साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो किसी के विचार नहीं हैं, वो फैक्ट्स हैं. और ये फैक्ट्स कैसे स्टैब्लिश किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा. एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है. उसी तरीके से टेलर ने भी ये बातें कही हैं कि आप ऑब्जर्वेशंस करें, ऑब्जर्व करें. ऑब्जर्व करने के बाद डेटा, यू रिकॉर्ड द डेटा, एनालाइज द डेटा, एंड देन यू रीच टू अ कंक्लूजन so that you can make some principles, develop some principles on the basis of that. He has said that there is no set rule which you can take from somewhere and then apply it in an organization. You will have to develop, create the rules, create the principles which best suit in an organization. Harmony, not discord. आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस में और जब ये प्रिंसिपल्स बनाए गए थे फैक्ट्रीज में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक प्रकार की राइवैलिटी चला करती थी. व्हाई सो? बिकॉज मैनेजमेंट ऑलवेज थिंक्स एंड यूज्ड टू थिंक इन दोज टाइम्स. मैनेजमेंट ये सोचा करता था कि वर्कर्स को कम तनख्वाहें देके उनसे ज्यादा काम कैसे कराया जाए. दूसरे हाथ में वर्कर्स भी कुछ इसी तरीके से सोचते थे कि कम काम करके ज्यादा सैलरी कैसे ले सकते हैं. Taylor has very clearly said that you will have to work as a team, and in order to ensure that a team works properly, there should be environment of harmony. सौहार्द का वातावरण, एक खुशनुमा माहौल, एक आपस में सहयोगात्मक रवैया दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का होना चाहिए. How this is going to happen? ये कैसे होगा? He said कि ये it will happen when the management, both the management and the workers will change their attitude. जब दोनों ही लोग अपने नजरिए को बदल लेंगे तब ये पॉसिबल है. नजरिए में क्या बदलाव की जरूरत है? Management should think that workers belong to the organization, they are a part of this organization, and therefore their betterment should be taken care of. Their welfare should be taken care of by the management. Management should also feel that if the workers of the organization, they will prosper, the organization will prosper. On the other hand, workers should feel that they should give their best to the organization so that when organization will flourish and it will achieve its goals, then only the worker will also flourish. तो दोनों को इस तरीके से सोचना चाहिए कि वर्कर के ग्रोथ में ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, और वर्कर को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी कंपनी बढ़ती है आगे
तो मैं भी उसके साथ साथ आगे बढ़ूंगा। दोनों अगर इस तरह की सोच रखेंगे, मैनेजमेंट वर्कर्स को अपने फैमिली का हिस्सा मानेंगे, वर्कर्स मैनेजमेंट को अपना मानेंगे, तभी ये फीलिंग के साथ आगे एक टीम काम करेगी, और ये टीम काम करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर पाएगी। तो यही और ये तब होगा जबकि आपस में सबों के नजरिए एक दूसरे के प्रति बहुत ही हारमोनियस होंगे। तो हारमोनी होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, आपस में स्नेह होना चाहिए, एक सौहार्द होना चाहिए। लेट अस कम ओवर टू द थर्ड प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में हमेशा टीम काम करती है, तो इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है वो अच्छे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स होने चाहिए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट एज वी वर्क एज अ टीम। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखें। ऑपरेशंस वाले अपना ऑपरेशंस करते हुए ये ना सोचे कि सेल्स वाले सेल्स कम क्यों कर रहे हैं, सेल्स वाले ये ना सोचे कि ऑपरेशंस वाले काम ठीक नहीं कर रहे हैं, और दोनों मिलकर फिर अकाउंट्स को दोषी ना ठहराएं। इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो आरोप प्रत्यारोप आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में लोग लगाने लगते हैं, ये लगाए बिना एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया रखें। दूसरी बात याद रखें कि अगर एक टीम में किसी एक ने बहुत सोचा कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, तो वो अकेला फिर कुछ नहीं कर पाएगा, और अकेला अगर वो कल कर भी लेगा तो सेलिब्रेट किसके साथ करेगा। तो देयर शुड बी अ टीम सेलिब्रेशन। इसीलिए इंडिविजुअलिज्म में ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं होता, इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं होना चाहिए। काम कोऑपरेशन के साथ, सहयोग के साथ एक समुदाय काम करता है, और समुदाय के विकास के साथ ही संस्थान का विकास होगा। तो यही बातें यहाँ पे इस प्रिंसिपल में इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट कोऑपरेशन, the attitude for cooperation has to be there. Once again, the word attitude I am using, because if this will happen, this will happen. Both of them are interrelated. So cooperation will only happen when there is harmony. If there is no harmony, there will be no cooperation. And the vice versa is also correct. If there is cooperation, it means there is harmony. So, और इंडिविजुअलिज्म में आपको क्या होता है कि you will have to sacrifice your individual identification. बहुत लोग एक बार बात करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक्चुअली हम लोगों ने प्रीवियसली वी स्टडीड फायोल के प्रिंसिपल में, तो देयर शुड बी वी, नॉट आई। आई इज नॉट देयर। द टर्म आई nowhere stands in when we talk about a team. So these two words describe this principle in a very nice way. Cooperation, not individualism. Students, ये पूरा पेपर theoretical है, और सारे चैप्टर्स में बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी जब तक कि हम फाइनेंशियल पार्ट को स्टडी नहीं करते हैं। तो वहां पे फिर क्या है कि चीजों को समझ के अगर हम चलें तो हमारे लिए बेहतर होगा। देन वी कैन डिस्क्राइब इट इन आवर ओन वर्ड्स। लेट अस कम टू द फोर्थ प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये भी दूसरे के साथ जुड़ी हुई बात है। Once the management starts having this, working with this attitude कि हमारे वर्कर्स अगर बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत अच्छा प्रॉस्पर करेंगे, बहुत अच्छी उनकी लाइफस्टाइल हो, तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप अच्छा करेगा। अगर ये सोच मैनेजमेंट की हो, ये नजरिए में परिवर्तन हो, अब तो कंपनीज में बहुत ये सारी चीजें हैं, लॉट ऑफ ट्रेनिंग, रिक्रिएशन, डेवलपमेंट, एनरिचमेंट, एम्पावरमेंट, हैंड होल्डिंग, ये सारे टर्म्स यूज भी किए जाते हैं और बहुत ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। तब जबकि ये प्रिंसिपल्स लिखे गए थे, तब उस टाइम में ये इतनी चीजें ये नहीं हुआ करती थी। तो अब तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, लोगों को ज्वाइन कराया जाता है। तो उसके पहले उनकी एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, और पूरी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कराने के बाद ही फिर उनको काम में भेजा जाता है। एंड टाइम टू टाइम द रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग्स आर ऑलवेज कंडक्टेड। So the thing is that development of workers is very important for any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मैनेजर को, किसी भी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को ये समझना बहुत ही जरूरी है। और जितना जल्द आप ये समझ के इसको अप्लाई करेंगे, उतना ही जल्द आप देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीजें बहुत अच्छी होनी शुरू हो चुकी हैं।
तो वर्कर्स की डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना होगा. यू विल हैव टू इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग. दैट इज फर्स्ट थिंग. प्रॉपर ट्रेनिंग will improve. What will it improve? When you will give proper training, it will improve the efficiency to the greatest levels. ग्रेटेस्ट लेवल्स पे एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी. ये प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जब एम्प्लॉइज बहुत अच्छा काम करेंगे, दे विल बिकम प्रॉस्पेरिटी आएगी. दे विल यू विल सी द एफिशिएंसी गेटिंग इंक्रीज्ड. मेजॉरिटी में सारे. तो मैं समझता हूं कि ये चारों प्रिंसिपल्स को हम लोग समझ चुके हैं. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. इन चारों प्रिंसिपल्स को देखने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टेलर की हैं जो मॉडर्न मैनेजमेंट में बहुत महत्व रखती हैं. दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न मैनेजमेंट. सबसे अच्छी बात एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की ये है कि इन्होंने ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कैसे होगी इसके लिए टेक्निक्स भी बताई, और टेक्निक्स बहुत इलेबोरेट करके उन्होंने बताई. तो लेट अस सी द टेक्निक्स. इनकी 5 टेक्निक्स हैं इनके द्वारा बताई गई. द फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फॉर्मेशन. द सेकेंड टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. द थर्ड टेक्निक इज वर्क स्टडी. वर्क स्टडी के अंतर्गत वी हैव टू स्टडी 4 टेक्निक्स. यहां पे मैं इसके अंतर्गत 4 टेक्निक्स को पढ़ना है. फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. फोर्थ वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. वर्कर्स के वेजेस कैसे, यहां वेज लिखा गया है, वेज टर्म का यूज हुआ है क्योंकि ये फैक्ट्रीज में इस टर्म को अप्लाई करते हैं. तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, एम्प्लॉइज की सैलरी किस तरीके से फिक्स हो, वेजेस कैसे फिक्स किए जाए, इसके बारे में है. एंड मेंटल रिवोल्यूशन. तो ये 5 टेक्निक्स उन्होंने दी हैं. ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, 5 टेक्निक्स हैं. वी आर गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ द होल थिंग. अगर आपको कहा जाए कि एक्सप्लेन द एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल इन ब्रीफ, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? दिस इज द एक्सप्लेनेशन. एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. These are the 4 principles. Taylor scientific principles. Science, not rule of thumb. Harmony, not discord. Cooperation, not individualism. Development of workers to their greatest efficiency and prosperity. In order to apply these 4 principles, the 5 techniques which have been given by F.W. Taylor are as follows, and these are the techniques: functional foremanship, standardization and simplification of work, work study, and under work study we have to study 4 techniques: fatigue study, method study, time study and motion study. The 4th one is differential piece-based system. 5th one is mental revolution. So this is the overview of the Taylor's scientific principles of management. I hope that you are very clear with this. Now let us come and I will explain you the first technique, functional foremanship.